مذہبی پیشوا ہیں جی اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم مین سٹریم سے دنیا دار بھی کہتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کی تشریح ہم نے کہیں نہ قرآن و حدیث میں دیکھی، نہ مذہب میں دیکھی، نہ کسی جگہ پہ دیکھی۔ تو مفتی صاحب آج میرے حاضرین اور ناظرین کے علم میں اضافہ کریں اور بتائیں کیا خواجہ سراج جو ہیں ان کا مذہب میں، دین میں، دھرم میں کہیں پہ کوئی سلسلہ یا واقعہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورک ٹی وی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارا فیضان رمضان کے نام سے ایک خصوصی سیگمنٹ آن ایئر ہوتا ہے، اور ایک جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ آج کے فیضان رمضان کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ تشریف لائے ہیں بہاولپور سے۔ یہ نہ صرف مذہبی اسکالر ہیں بلکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی محبوب علی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے، خدا کا فضل ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یہ فیضان رمضان کی خصوصی سیگمنٹ میں تشریف لے کے آئے۔ دیکھیں، یہ تو آپ کا ہے کہ آپ مورک ٹی وی کے ذریعے جو کمزور طبقات کی آواز بنتی ہیں، بالخصوص خواجہ سرا کمیونٹی، اسپیشل پرسنز، اور پھر جس طرح مذہبی جو ہے اپنے ایونٹس کرتی ہیں، تو یہ تو آپ کا بہت شکریہ سوسائٹی کے اوپر کہ آپ جیسی کمزور طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے فرنٹ پر آئے، کوشش کرتے ہیں، بہت مہربانی۔ میں سمجھتی ہوں محبوب صاحب کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو خدا دادا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے اور آٹومیٹکلی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرے گا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ مجھے ٹرانسفر ہوا ہے اپنے والد مرحوم ان سے، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے ان میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی تھی، مطلب سوشل ویلفیئر۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، تب تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کبھی راشن کے تھیلے لے کے جا رہے ہیں، کبھی وہ کسی کی سبزی کی اور آٹے کی بوریاں لے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں خدا اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو تب بھی ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، تو لیکن وہ آٹومیٹکلی ہم نے جینز میں ٹرانسفر ہو گیا، تو میں نہ چاہ کے بھی یہ کروں گی اور کر رہی ہوں اور کرتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی ڈیبیٹ کریں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے فیضان رمضان کے بارے میں۔ ضرور۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا اور سب طرف سحری، افطاری اور رحمت اور برکتوں کی ریل پیل ہے، تو آپ ہمیں پہلے تو رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ قرآن و حدیث سے کوئی ہمیں تعلیمات بتائیں، اور ہمارے دیکھنے سننے والے اور اس وقت جو حاضرین تشریف فرما ہیں تاکہ ان کے علم اور عمل میں اضافہ ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، جو ہے عرض یہ ہے کہ عوامی سطح پر اکثر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے جو ہیں صرف مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں ان پر روزے فرض ہوئے تھے اور ہم پر بھی ہوئے۔ اب وہ قومیں اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں، یہود و نصارہ بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر ہم تورات، زبور، اناجیل کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی روزوں کا ذکر ہے۔ تعداد ان کی مخصوص نہیں ہے، کہیں 40 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں زیادہ ہیں، اور لیکن فرض ان پر بھی رہے۔ آج بھی مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ اصل میں روزے کی جو اصل روح ہے اپنے سونیا ناز، وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں گناہوں سے بچیں، اپنی روح کو پاکیزہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ میرے خیال میں روزہ نہیں، ایک فاقہ ہی ہوتا ہے، فاقہ کشی ہوتی ہے، نہ وہ نماز کی طرف جاتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بدنگاہی سے نہیں بچتے، بدگوئی سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے، بدگمانی سے نہیں بچتے، برے خیالات سے نہیں بچتے، جبکہ روزہ جو ہے ہمارے سارے اعضاء کا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ لوگ فاقہ کشی تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو روزے کی اصل روح ہے اس کو نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ روزہ تو یہ کہ وہ خدا کے قریب کرتا ہے،
बिल्कुल बिल्कुल। इतना करीब करता है बंदे को कि अगर रोजेदार के मुंह से जो स्मेल आ रही होती है उससे शैतान दूर भाग रहा होता है, खौफ आ रहा होता है, कांप रहा होता है, सुभान पिघल रहा अल्लाह, होता है। माशाल्लाह। और रब ताला उस स्मेल को, उस महक को मुंह की बहुत अच्छी महसूस करते हुए अपने जो है करीब तर करता चला जाता है और पसंद करता है। और फरिश्तों का आगे बगाना जिक्र किया जाता है कि जो इस रोजेदार की महक है रब ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल लेकिन एक वही फाका कश, उसका क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और रोजा हमें सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है, रोजा हमें रवादारी और बुर्दबारी का दर्स देता सही है। सही फरमा रहे हैं। रोजे में आपको एहसास होता है उस गरीब का या उस इंसान का कि जो रमजान के अलावा भी फाका कशी करते हैं जी और हालात और महंगाई से तंग आकर वो न जाने किस तरह कसम पुर्सी में जिंदगी गुजार सही रहे होते फरमाया। हैं। तभी हम देखते हैं कि रमजान मुबारक में लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इस तरह के नेक अमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, सदका जारिया है, करना भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पूरा साल ये सिलसिला होना चाहिए, सिर्फ रमजान में ही क्यों। बल्कि मुझे यहाँ पे वो हदीस कुदसी याद आ रही है, मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रब ताला क़यामत के दिन बंदे से पूछेगा कि मैं तुम्हें मिला जब मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत ही ना की। करो आप बीमार, आप तो रब हो, खालिक कायनात हो, तो फलां अगर मरीज की आदत करते तो वहां मुझे पाते। फिर सवाल होगा कि आदम, इब्ने आदम, तूने जब मैं भूखा था मुझे खाना नहीं खिलाया। ऐ खुदा, तू तो खुद राज़िक है और तुझे हम खाना दे, हम कहाँ से दे और हम कैसे दे सकते, तू तो खुद खालिक कायनात है। कहा अगर फलां जो भूखा शख्स था उसको खाना देते तो उसकी जगह मुझे पाते। फिर ऐसा कि सवाल होगा, इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मेरे पानी नहीं दिया। ऐ खुदा, तू खालिक कायनात, हम तुझे कहाँ से पानी देते और कैसे दे सकते थे। अगर फलां प्यासे को पानी पिलाते तो उसकी जगह तुम मुझे पाते। सुभान अल्लाह। तो खुदा जो है अपने बंदे को जो है छोटी छोटी नेकी से करीब तर करता चला जाता है। जैसे आपने कहा हमें रमजान के अलावा भी साल में कोशिश करनी चाहिए भूखों के प्यासों की भूख और प्यास का एहसास करें, अपने अजीजों कारिब के साथ साथ मोहल्ले और हमसाए उनमें जो बसने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल करते रहना चाहिए हमें। बेशक बेशक। और हमें इस चीज को देखना है कि आया कि हम अपने गिरदोनवा के रहने वालों के, अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप के, अपने हमसायों के कितने हकूक पूरे इसमें मैं और भी सोनिया नाज आपके उससे एडिशन करता चला जाऊं, हमसाया तो हमसाया, यहाँ तक के कहा गया कि वो यहूदी भी है ना, हम भी उसके साथ अपने यही रवादारी का रखा जाए, उसने सलूक का हुक्म दिया। भले वो यहूदी है। अब जबकि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट, हम पहले किसी से वो सलूक करने के बाद पूछते तुम्हारे यहाँ फिरका क्या है, जमात क्या है, जीन्स क्या है, जबकि हमसाया है उसके तो मजहब के बारे में भी पूछने का वो नहीं है। आप ये देखें कि मेरे ख्याल में दुनिया का कोई भी मजहब है वो सबसे पहले इंसानियत का दर्ज देता है। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद कोई मजहब है, कोई दीन है, कोई धर्म है। सबसे पहले आप देखें कि वो एक इंसान है, उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें और जिस कदर भी हो सके, क्योंकि हमारा मजहब भी ये कहता है कि हकूक अल्लाह जो है वो माफ हो सकते हैं लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाए। तो जैसा कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, आप अपने गिरदोनवा में देखें कि किसको किस चीज की जरूरत है। क्या आपके हमसाये ने सैर होके सहरी की है, अफ्तारी की है या नहीं की, या उनको किस चीज की जरूरत है। बट एनी हाउ, ये तो हो गई हमारी रमजान मुबारक की मुकद्दस की बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें। अब इसके साथ मुफ्ती साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम थोड़ा सा ख्वाजा सलाम के हवाले से भी पूछना चाहेंगे कि आम हम लोग, हमारे जो मजहबी पेशवा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम मेन स्ट्रीम से दुनियादार भी कहते हैं, वो कहते हैं ख्वाजा सलाम की तशरीह हमने कहीं ना कुरान और हदीस में देखी, ना मजहब में देखी, ना किसी जगह पे देखी। तो मुफ्ती साहब आज मेरे हाजरीन और नाजरीन के इल्म में इजाफा करें और बताएं क्या ख्वाजा सराज जो हैं इनका मजहब में, दीन में, धर्म में कहीं पे कोई सिलसिला या वाकया मौजूद है। सोनिया नाज, आपके इसी चैनल के तवस्सुल से मैं ख्वास और अवाम दोनों से गुजारिश करूंगा कि ये वो शख्स बात करेगा जो अपने मजहब के माखिज, यानी जो उसके मजहब का माखिज कुतुब हैं, वो उनसे नाशना होता है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि मैं क्योंकि ये सवाल बड़ा तफसीली है, लेकिन मैं इसको बहुत मुख्तसर करके अर्ज करता हूँ और वाज़ेह सादा अंदाज में। आप सबसे पहले हम, क्योंकि सबसे पुराना अगर देखते हैं मजहबी एतबार से तो हिंदू धर्म पुराना है, हम उधर से शुरू करते हैं। भगवत गीता
रामायण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, महाभारत, इनमें भी ट्रांसजेंडर ख्वाजा असरार का जिक्र मौजूद है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने इलामी मज़ाहिब की तरफ जी। तौरात, ज़बूर और इंजील और अंबिया के सहाइफ, इसमें तकरीबन 39 आयात मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से ख्वाजा असरार की डेफिनेशन भी मौजूद है, ख्वाजा असरार का मुकाम मर्तबा भी मौजूद है कि ख्वाजा असरार बादशाह भी रहे हैं, ख्वाजा असरार, बल्कि ख्वाजा असरार का मुकाम तो यहाँ तक भी तौरात में बयान हुआ है कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के खुराक, लिबास, खाने पीने का इंतजाम उनके जिम्मे था ख्वाजा असरार के। अच्छा, अंबिया अलैहिस्सलाम के। वाह, वैसे ये बात मुझे आज पता ठीक है, तौरात के अंदर मौजूद है और इंजील में तो बकायदा फिर वाज़ेह और खोल कर बयान किया गया। बकायदा इंजील मती के अंदर बाब 19 के अंदर वाज़ेह वर्स मौजूद है, इसमें कहा गया कि बाज खोजे ऐसे जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, बाज खोजे ऐसे जिनको लोग बनाते हैं, और बाज खोजे ऐसे जो खुदा के हजूरी के लिए, खुदा की रजा के लिए अपने आप को ऐसा करते हैं। मतलब तीनों कैटेगरीज को एक्सेप्टेबल बकायदा इंजील में वाज़ेह बयान है बकायदा इंजील के अंदर। फिर आते हैं कुरान की तरफ। कुरान पाक अब कुरान की तरफ तो बकायदा अपने सूरह शूरा आयत नंबर 49-50 की तफसीर में लिख दिया गया। तफसीर में क्या वाज़ेह लिखा, और उन्होंने कहा कि कुरान खामोश ही नहीं है इस तीसरी जिन्स के बारे में, और जो शख्स ये कहता है कि तीसरी जिन्स के बारे में कुरान में जिक्र नहीं है, वो कुरान की फसाद और बलागत, कुरान के मानी और मफहूम, इसकी गहराई से नाशना है, बल्कि वो अक्ल का फतूर है उसके। यहाँ तक वर्ड मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल किए। फिर आ जाए बात अपने सूरह नूर है, उसकी सूरह की वो आयत की तशरीह कर दें, जो क्या है वो सूरह, वो देखें असल में। हाँ, उस पर भी जैसे बात करते हैं, किसी को अपने बेटियां दी गई, किसी को बेटे दिए गए, और किसी को दोनों मिला कर दिए गए, मिले जुले दिए गए। अल्लाह जो है सब चीजों पर अख्तियार रखता है जिसको जो नवाज दे। अच्छा, बाज क्या कह देते हैं, ये जी खास अंबिया के लिए है, क्योंकि बाज अंबिया को बेटियां दी गई, बाज को बेटे दिए गए, बाज को दोनों ही नहीं दिए गए, इसलिए बात तफसीर को इस रुख पर कुरान पाक तो ता क़यामत ही एक हमारे लिए। ये आपके ये सोनिया मेरे अल्फाज में, मैं यही वजाहत करने जा रहा था कि लोग ये कहते हैं, लेकिन जबकि मुफस्सिरीन ने फिर लिखा कि ये जो हुक्म है ये अंबिया के लिए खास नहीं है, ये तफसीर में जरूर अंबिया के लिए है, लेकिन ये हुक्म ता क़यामत वालों के लिए, ख्वास के लिए और अवाम दोनों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सूरह नूर में जहाँ पर्दे के अहकाम आए हैं, वहाँ बकायदा तीसरी जिन्स के लोगों का बयान है, ना मर्द का भी आया है, वह मुखन्नस का भी आया है, खुंसा का भी जिक्र आया है। फिर सूरह शूरा में वाज़ेह है कि बेटे बेटियां। फिर इसकी तफसीर अगर आप उठाते हैं तो वहां विरासत के अहकाम बयान हुए, आका अलैहिस्सलाम ने विरासत के अहकाम बयान किए। ठीक है, फिर अगर आप तफसीर के बाद अहदीस की तरफ जाएं तो बहुत सारी अहदीस मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम के असहाब में से बकायदा ख्वाजा असरार थे मुखन्नसीन, जो अहले बैत के घरों में आते जाते थे, अज़वाज मोहतरात के साथ उठते बैठते थे मुखन्नस। एक तो ये अहदीस और ये चीजें सामने हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा देखेंगे वहां से ये हुआ कि जो मुसलमान है उसको कत्ल की इजाजत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करे उस मुखन्नस का। हमें भी चाहिए था कि आज कोई अगर मुखन्नसीन पे उंगली उठाता है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कि देखिए आए दिन इतने वायलेंस के हरासमेंट के केसेस हम देखते हैं, केपीके में कैसे काट काट के मूलियों गाजरों की तरह ख्वाजा, जबकि हालांकि हम इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कौन सा दीन है, कौन सा मजहब है जो इंसानियत के कत्ल की इजाजत है? इंसानियत के कत्ल की तो एक तरफ रहेगी, जिनसे जंग भी की जाती थी ना, बकायदा उसको भी सूलो जवाब देकर भेजा जाता था कि अगर काफिर जो आपके बिल मुकाबला आगे है उससे आप लड़ रहे हैं ना, मार दिए, उसके आप अजान ही काट सकते। लेकिन जो जंग लड़ रहा है, जिसके साथ जंग लड़ रहे हैं, उसको कत्ल भी कर दिया, उसको अजान काटने की इजाजत नहीं थी, उसको मुसला करने की इजाजत नहीं है, उसको आग लगाकर जलाने की इजाजत नहीं थी। तो अब आप ये देखें कि बहुत सारे मजहबी पेशवा और मजहब के जो ठेकेदार बने बैठे हैं आजकल, अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारे वो जो कानून पास हुआ वो कितनी कंट्रोवर्शियल आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, वो सुनने को मिलती हैं। तो क्या वो भी तो दीन का भी बड़े गहरा ताल्लुक है? हमने नाम तो नहीं लिया, उनको नाम हम भी नहीं लेंगे, नाम नहीं लेकर अर्ज करने जा रहे हैं। क्या उन्होंने ये कुरान और अहादीस नहीं सुनी? आप ये कहते हैं सोनिया, वाहिद पाकिस्तान का एक मुफ्ती है, वाहिद, मैं वाहिद इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बाकी उलमा कराम शोर ले लेंगे इससे कि क्या औरत के मामला हो तो इतने मौजू पर किताबें मिलेंगी, मर्द के मसाइल पे बहुत सारी किताबें मिलेंगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो हमारे 5 अरकान है, आए दिन नया से नया मुसन्नफ एक किताब निकाल रहे हैं, नए से नए नावल निकाल रहे हैं, नए से नई कहानियां निकाल रहे हैं। आज तक क्यों जरूरत नहीं पाकिस्तान में कोई तीसरी जिन्स पर भी मसाइल लिख देता, मतलब अमल तब करें ना हमारे पास कोई मवाद हो। बिल्कुल बिल्कुल, जब होगा। एक मुफ्ती ने लिखा 25 सफ़ात का रसाला, दोबारा पब्लिश नहीं हुआ। एक ने लिखा तकरीबन 20 से 30 सफ़ों का, वो भी पब्लिश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दोबारा इस पर फतवा देने से मना कर दिया उस मुफ्ती ने, इस मौजू पर फतवा ना मांगा जाए। अच्छा, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब 10 से 12 जिल्दों की किताब लिखी, जिसमें 18 से 20 सफ़े सिर्फ ख्वाजा सा कम्युनिटी के मसाइल के लिखे भाई। जहां 12 जिल्दें से 15 जिल्दें आप लिख रहे हो, एक जिल्द लिख देते ख्वाजा सा के मसाइल पे, नहीं लिखी।
चले जी कोई बात नहीं। एक मुफ्ती ने कोशिश की, जुर्रत की, 250 से 250 सफ़हात पर किताब लिखी, अपना थीसिस लिखा। वाइड वो एक मुफ्ती है। जब सोनिया मैं उनसे बैठा कि सवालात रखे, वो यूं सर पकड़ के बैठे। अच्छा जी, उनकी क्लास मौजूद थी बकायदा, आलिम बन चुके थे, मुफ्ती बन रहे थे। वो क्लास आम भी लोगों की नहीं, जो मुफ्ती बन रहे थे। मैं झिझक रहा था पता नहीं सवाल रखने उनका, नहीं ये आलिम बन चुके, मुफ्ती बनने। महबूब साहब आप सवालत रखें। मैंने अभी 3 सवाल रखे, तो उनसे जवाब जवाब सर पकड़ा उन्होंने यूं। तो कहते हो खुदाया महबूब पहले क्यों नहीं मिले? तुमने मेरी सारी रिसर्च, मेरे थीसिस को आपने कमजोर करके रख दिया। मैंने कहा वो कैसे मुफ्ती साहब, मैंने तो कोई गलत बात तो नहीं की। कहते मेरे जहन में नहीं आए थे ऐसे ऐसे सवाल भी इनमें, ऐसे ऐसे मामला भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते वो तो पब्लिश होने के बाद आप मुझे सवाल दें, हम उस पर फिर काम करते हैं कि ये तो एक और किताब तैयार हो जाएगी। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने मैं तो कहती हूँ ये इनिशिएटिव आप ही लें। माशाल्लाह आपका जितना इल्म है और जितना शौर है आपको इस चीज पे, आपको इस पे एक किताब लिखनी चाहिए लाजमी। मोहतरमा फिर आपने मेरा दुख छेड़ दिया। चले आपके इसी पर शायद जहाँ उलमा कराम को मैंने जगाने की कोशिश की है। जरूर जरूर। उन एनजीओ इदारों को जो बेचारे बड़े बुलंद दावे करते रहे, बुलंद बांग दावे, बकायदा एमओ भी 2 दफा साइन हुआ कि जी हम बुक को शाया करते हैं। किसी ने कहा जी हमें दे दें, किस के हिसाब से शाया कर लेंगे बुकलेट की सूरत में। बस वो बाज जुबानी कलामी बातें रहे, बाज एमओ लिखा हुआ भी उस पर काम नहीं हुआ। ओहो, मवाद जमा है। हाँ। बहुत और ऐसा है, मेरा चैलेंज है कि हर रेफरेंस का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, हर कोड में जिम्मेदार हूँ। चले हम अपने मोरे टीवी के तवस्सुत से आपकी ये अपील, आपका ये पैगाम अपने देखने सुनने वालों तक पहुंचाते हैं कि इनके पास पूरा एक मवाद, पूरा 400-500 पेजेस का ख्वाजा साओं के इस्लामी तालीमात और अहकामात, पूरा 400-500 पेजेस है। और ये इसको पब्लिश भी करना चाहते हैं, किताब शाया भी करवाना चाहते हैं, लेकिन लेक ऑफ फंड्स की वजह से शायद ये नहीं कर पा रहे, जो मैं समझी हूँ। ऐसा ही है ना? तो अगर आप में से मेरे मुखैर हजरात, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इस नोबल काज में, इस ग्रेट काज में इनके साथ कोई कंट्रीब्यूशन कर सके और इनके साथ कोई शेयर कर सके, जिससे देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक दिली मसला है, ये मामूली बात नहीं। जहाँ पे मर्दों के काम आते हैं, जहाँ पे औरतों के काम आते हैं, वहाँ ख्वाजा साहब की तालीमात और हिकमात वाकई हमें किसी बुक में, किसी जगह पे नहीं मिलते। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो जो भी इनके साथ तावन कर सकें वो जरूर कोऑपरेशन करें। हम लोग दिल की गहराइयों से आपके मशकूर होंगे। तो बहुत अब बातें इतनी मजे की भी दिल नहीं कर रहा कि मैं वाइंड अप करूं प्रोग्राम को, लेकिन फिर लेंथ ही हो जाएगा, फिर लोग भी बोर हो जाएंगे और देखेंगे नहीं। तो मुझे खुशी इस चीज की कि फैजान रमजान का जो हमारा खुसूसी सेगमेंट है, हमने मुफ्ती महबूब अली साहब जो कि बहावलपुर से स्पेशल तशरीफ लाए हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो आज के मुबारक महीने की तवज्जो से हम अपने, हमारे पास इस वक्त कुछ कम्युनिटी मेंबर्स भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और मुफ्ती साहब ने हमारे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, हम इस काबिल नहीं किसी के लिए कुछ कर सकें। एक माजूर बच्चा है जिनकी ये कफालत कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी हमने कुछ थोड़ा सा कुछ तहाइफ का इंतजाम किया है, तो वो भी हम आपको, वो आपके इधर लाहौर से रेस्क्यू करके बालपुर गया है। अच्छा जी जी, अच्छा, वो आप उनको लाहौर से रेस्क्यू करके लेके लाहौर से रेस्क्यू किया। तो उनकी फैमिली कोई आगे पीछे फैमिली नहीं, उनको अपने दाता दरबार के बाहर छोड़ दिया। ओहो, देखिए कितनी जालिम दुनिया है कि मैं क्या कह सकते हैं, स्पीचलेस। इदारों ने भी लेने से इनकार कर दिया कि माजूर है। सबसे बड़ी फिर आगे बात ये फिर नेकियां, ये जन्नतें फिर आप ही कमा रहे हैं मुफ्ती साहब। तो इंशाल्लाह हमने एक छोटी सी कोशिश की है, आप वो कबूल फरमाएं और गाहे बगाहे भी इंशाल्लाह हमसे जो हो सका वो हम जरूर करेंगे। व्हील चेयर का इंतजाम शायद आपने कर लिया था, आपने मुझे कहा था, वरना हम आपको व्हील चेयर का कर देते। इस वक्त कुछ तहाइफ हमने आपके लिए अरेंज किए उनको देने के लिए, वो आपको देंगे, वो आप जरूर लेके जाइएगा। और उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमारा आज का ये खसूसी सेगमेंट फैजान रमजान का पसंद आया होगा। हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे मुफ्ती साहब से मिलके, उनकी बातें सुन के और इतनी खूबसूरत दीनी इस्लामी तालीमात सीख के कैसा लगा। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरक टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई पर्सनैलिटी और एक नई सेलिब्रिटी के साथ, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے۔ مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔